देखिए सवाल दिया है, ए डीजल पावर स्टेशन हैज फ्यूल कंजप्शन 0.28 केजी पर किलोवाट आवर्स। मतलब कि 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी के लिए 0.28 किलोग्राम जो होता है फ्यूल को खर्च किया जाता है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बिंग 10,000 किलो कैलोरी प्रति केजी। मतलब कि ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू 10,000 किलो कैलोरी प्रति केजी है। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द स्टेशन इज। तो देखिए कि जब कैलोरीफिक वैल्यू जो है कि 10,000 किलो कैलोरी प्रति केजी है और 1 किलोवाट एनर्जी को प्राप्त करने के लिए 0.28 केजी जलाना पड़ता है। यानी कि टोटल इनपुट पावर जो होगा वो हो जाएगा, इनपुट पावर हो जाएगा जो 0.28 जो कि फ्यूल का मात्रा है उसमें कैलोरीफिक वैल्यू यानी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा 2800 किलो कैलोरी। क्योंकि देखिए ये केजी से ये वाला केजी कट जाएगा। अब देखिए 1 किलोवाट आवर बराबर दिया हुआ है 860 किलो कैलोरी जो कि आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो देखिए आउटपुट में इनपुट का भाग कर देंगे, यानी 860 में 2800 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा एफिशिएंसी 30.7%। विच IS code provides the standard voltage bands for electrical installation? IS 12360, IS 12360। देखिए IS codes for electrical installation IS 732। This code provides guidelines for electrical wiring installation. It covers selection and erection of wiring system, earthing arrangement, and the protection of the electrical installation. IS 3043. This code pertains to earthing in electrical installation. It provides detailed guidelines on the design, installation, and testing of earthing system. IS 12360. This is the standard code that defines voltage bands for electrical installation. It specifies the different voltage level and their corresponding tolerances to ensure the safe and efficient operation of electrical system. Hence, statement first is correct. IS 1255, IS 1255, this code deals with the installation and maintenance of power cables. It provides guidelines for the selection, installation, and testing of power cables to ensure their safe and reliable operation. Additional information. IS 12360 voltage bands. This code specifies the voltage levels for different categories of electrical installation in India. It ensures its standardization and safety across various electrical systems. The code is crucial for the design and operation of electrical systems, ensuring they meet the required voltage standards. Importance of standard codes. Standard codes like IS 12360 ensure uniformity and safety in electrical installation. They provide guidelines for the design, installation, and maintenance of electrical systems, reducing the risk of electrical hazards. These codes are periodically updated to incorporate the latest technological advancement and safety practices. Application in electrical engineering. Electrical engineering rely on these codes to design and implement electrical systems that are state efficient and compliant with national standards. Adherence to these codes is mandatory for obtaining regulatory approvals and certification for electrical installation. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। देखिए
Moving iron connected through the current transformer, black DC supply, so that moving iron connected through the current transformer is only used for AC measurements. The moving iron meter has a large magnetic reluctance as compared to the PMC meter. That's why more power is required to operate the moving iron meter. Advantage of moving iron: it is a universal instrument which can be used for the measurement of AC and DC quantities. This instrument can withstand large loads and are not damaged even under severe overload conditions. It is very cheap due to the simple construction. Disadvantage of moving iron: these instruments suffer from error due to hysteresis, frequency change, and stray losses. The reading of the instrument is affected by temperature variation. Permanent magnet moving coil (PMC) is only used for DC measurements. Moving iron type instrument can be used for both AC and DC measurement. Rectifier type instruments are used for both AC and DC measurements. Induction type instruments are only used for AC measurement. Thermocouple meters can be used for both DC as well as AC quantities. Note: in terms of accuracy, PMC meter has the highest accuracy. The order of accuracy is given below. देखिए सबसे हाई इंडक्शन का, उसके बाद मूविंग का, उसके बाद पीएमसी का। इसको याद मैंने सबसे कम इंडक्शन का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मूविंग का और सबसे ज़्यादा पीएमसी का। इसको याद रखने का ट्रिक है इम्प, इम्प से आई एम पी इम्प, आई से इंडक्शन, एम से मूविंग, पी से पीएमसी। Ultrasonic welding uses high frequency to heat up the required metals. In which of the following cases ultrasonic welding is not used? Fabricating nuclear fuel element. Ultrasonic welding. It is an industrial process whereby high frequency ultrasonic acoustic vibration are locally applied to workpiece being held together under pressure to create a solid state weld. Ultrasonic welding is used for application involving both similar and dissimilar joints as well as the welding of polymers. The process is used to produce lap joints in metals, plastic sheets, and plastic films in varied shapes as wires, cross or parallel ribbons, and flat surfaces for joining other types of assemblies that can be supported on an anvil. Setups are designed for the material and the part shape required. Ultrasonic welding is used in many industries, including electrical and computer, automotive and aerospace, medical and packaging. Welding galvanized sheet, splicing metallic foil, thermatic sealing of materials and devices are examples of ultrasonic welding. Important point: end plug welding is the most critical process in the manufacturing of nuclear fuel. The correct instant for closing the switch which connects an alternator with another alternator can be determined by a synchronoscope. Synchronoscope method. It is similar to bright-dark lamp method and indicates whether the alternator frequency is higher or lower than 2 bar frequency. A synchronoscope is used for better occurring of synchronization, and it consists of two points of terminals. One pair of terminals marked as existing has to be connected across two bars. Terminal are the existing alternator and the other pair of the terminal marked as incoming has to be connected across the terminal of an incoming alternator. The synchronoscope has a circular dial over which a pointer is hinged that is capable of rotating in clockwise and anti-clockwise direction.
After the voltage condition is checked, the operator has to check the synchronoscope. The rate at which the pointer rotates indicates the difference of frequency between the incoming alternator and the two bars. The direction to which the pointer rotates to either fast or slow gives the information whether the incoming alternator frequency is higher or lower than the 2 bar frequency, and hence the pointer moves either fast or slow. The appropriate correction has to be made to control the speed of the alternator to bring the rate of rotation of pointer as small as possible. देखिए जनरेशन वन, देखिए एसी वोल्टमीटर, देखिए लोड, सिंक्रो सिंक्रोनाइजिंग स्विच वोल्टमीटर, देखिए जनरेटर टू, सिंक्रोनोस्कोप इनकमिंग, एग्जिस्ट, स्लो फास्ट. The alternator provides the two-phase supply to the synchronoscope. If any of the two phases of the machine are synchronized, then the third phase was automatically being synchronized. When the difference in frequency is maximum, then the bulb will be glow minimum brightness. Similarly, when the difference in frequencies is minimum, then the bulb of the synchronoscope will glow with maximum brightness. Therefore, according to the question, if an alternator is being synchronized to the power station has bars whose frequency is 50 Hz, and if the bulb of the synchronoscope glow with maximum brightness, the frequency of the alternator will be 50 Hz or लगभग 50 हर्ट्ज. देखिए सिंक्रोनाइजेशन किसे कहते हैं, तो जब कोई अल्टरनेटर जो है कि किसी बस बार से जुड़ा हो और फिर यदि लोड की मतलब लोड बढ़ जाता है और दूसरा भी अल्टरनेटर जोड़ना है, तो देखिए उसको दूसरे अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ेंगे, तो जोड़ते समय जिन जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उसी को सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है. देखिए बस बार से जो पहले से ही अल्टरनेटर कनेक्ट होता है उसे रनिंग अल्टरनेटर बोलते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला पहले से ही कनेक्ट है. और देखिए जिस अल्टरनेटर को हमें समांतर में कनेक्ट करना है उसे इनकमिंग अल्टरनेटर बोलते हैं. देखिए देखिए यहाँ पे बस बार की रेटिंग जो पहले अल्टरनेटर से सप्लाई आ रही है वही होगी. तो देखिए जो इनकमिंग अल्टरनेटर होगा उसकी भी वोल्टेज सेम ही रखना पड़ेगा. मतलब कि इनकमिंग अल्टरनेटर का वोल्टेज जो पहले वाला अल्टरनेटर का है उसी के समान होना चाहिए तथा फ्रीक्वेंसी भी उसी के समान होना चाहिए तथा फेज सीक्वेंस भी उसी के समान होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे वोल्टमीटर की सहायता से जो पहले से अल्टरनेटर काम कर रहा है उसका वोल्टेज मेजर कर लेंगे तथा फ्रीक्वेंसी मीटर की सहायता से जो पहले से अल्टरनेटर काम कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेंगे. और देखिए फिर जो इनकमिंग अल्टरनेटर है उसका भी वोल्टेज वोल्टमीटर से मेजर कर लेंगे तथा फ्रीक्वेंसी मीटर से फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेंगे. बट ध्यान दें फेज सीक्वेंस को मेजर करने के लिए जो होता है वह डार्क लैम्प मेथड का यूज किया जाता है. देखिए सेम फेज सीक्वेंस का मतलब कि देखिए जो पहले अल्टरनेटर का जिस फेज को आर से जुड़े हैं उसी उसी तरह दूसरे अल्टरनेटर का भी जो आर फेज है वह पहले बस बार से ही जुड़ा है. फिर देखिए वाई फेज यहाँ जुड़ा है, देखिए दूसरे वाला अल्टरनेटर है उसका भी वाई फेज वहाँ यहीं पे जुड़ा है. देखिए बी फेज यहाँ जुड़ा है, बी फेज यहाँ जुड़ा है. और देखिए ये जो बस बार हैं इन पर बहुत सारे अल्टरनेटर जुड़े होते हैं तो इसे इनफाइनाइट बस बार बोलते हैं. देखिए इनकमिंग अल्टरनेटर को जोड़ते समय देखिए यहाँ पे 3 ठो बल्ब लगाते हैं. और देखिए जब इस वाले को जब आर फेज से जोड़ते हैं तो देखिए यदि आर फेज से सही में अगर जुड़ा होगा यदि आर फेज तो जो बल्ब होगा वो नहीं जलेगा. अगर देखिए ये जो आर फेज है बस बार के वाई फेज से भी जुड़ा होगा तो वहाँ पे जो बल्ब है वो जल जाएगा.
इससे हम पता लगा सकते हैं कि सही फेज में जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। फिर देखिए, अब देखिए जो अल्टरनेटर का वाई फेज है, इसको हमें बस बार के वाई फेज से इससे जोड़ना है। यदि मान लीजिए कि वाई फेज को इस बस बार से जोड़ रहे हैं, तो ये बल्ब जो है वो जल जाएगा। और यदि इस वाले जो वाई फेज को वाई फेज से रियल में जोड़ेंगे, तो यह बल्ब जो होगा वो नहीं जलेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि सही फेज सीक्वेंस है कि नहीं है। अल्टरनेटर को किसी बस बार से सिंक्रोनाइज करने के लिए तीन मेथड का यूज किया जाता है। पहला, थ्री डार्क लैंप मेथड। दूसरा, टू ब्राइट वन डार्क लैंप मेथड। तीसरा, सिंक्रोनो स्कोप मेथड। आज सिंक्रोनो स्कोप मेथड के बारे में जानकारी लेते हैं। सिंक्रोनो स्कोप का देखिए फिगर, इसमें चार टर्मिनल होते हैं। देखिए सिंक्रोनोस्कोप में दो ठो ऊपर टर्मिनल होता है, जिसे बी साइड टर्मिनल बोला जाता है। और दो ठो यम साइड टर्मिनल होता है नीचे साइड, जिसे यम टर्मिनल बोला जाता है। देखिए बी साइड के टर्मिनल को हम लोग बस बार से कनेक्ट करते हैं, तथा यम साइड के टर्मिनल को अल्टरनेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि बी साइड के जो पहला टर्मिनल है, उसको यदि आर फेज से हम लोग जोड़ रहे हैं, तो यम साइड का जो पहला टर्मिनल है उसको भी अल्टरनेटर के आर फेज से ही जोड़ना चाहिए। और देखिए और देखिए यदि बी साइड के दूसरा जो टर्मिनल है, उसको यदि वाई फेज से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए जो सिंक्रोनो स्कोप का जो यम साइड का जो दूसरा टर्मिनल है, उसको भी हमको वाई फेज से ही अल्टरनेटर के जोड़ना चाहिए। देखिए सिंक्रोनो स्कोप में एक ठो पॉइंटर लगा होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज तथा क्लॉकवाइज रोटेट करता रहता है। देखिए जो सिंक्रोनो स्कोप का जो पॉइंटर होता है, वह बस बार और अल्टरनेटर इन दोनों के फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के अनुसार जो है कि मूव करता है। देखिए बस बार और जो अल्टरनेटर है, उन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो जो पॉइंटर होता है बहुत फास्ट मूव करता है। और यदि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो जो सिंक्रोनोस्कोप का पॉइंटर है वह कम मूव करता है, कम तेज़ी से। ध्यान दीजिए, यदि सिंक्रोनोस्कोप का पॉइंटर यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसका मतलब कि जो अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी है वह बस बार की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। और यदि पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो बस बार की फ्रीक्वेंसी है वह अल्टरनेटर के फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। और देखिए यदि सिंक्रोनो स्कोप का जो पॉइंटर है वह सीधा एकदम से होता है, तो इसका मतलब कि बस बार की फ्रीक्वेंसी और अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। देखिए टू ब्राइट वन डार्क लैंप मेथड। ये देखिए इनकमिंग अल्टरनेटर है जिसको कि कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे तीन ठो लैंप लगाया गया है। देखिए इसमें अल्टरनेटर का जो बीच वाला यानी आर फेज है, उसको बस बार के आर फेज से कनेक्ट किया गया है एक बल्ब के माध्यम से। लेकिन देखिए यहाँ पे स्विच को अभी ऑन नहीं किया गया है। और देखिए फिर देखिए अल्टरनेटर का जो वाई फेज है, इसको हम लोग जो है कि जो बस बार है उसके बी फेज से कनेक्ट किए हुए हैं। और देखिए अल्टरनेटर का जो बी फेज है, उसको जो है कि बस बार के देखिए वाई फेज से कनेक्ट किया गया है। अब देखिए जब इसको अल्टरनेटर के प्राइम मूवर को घुमाते हैं, तो जब देखिए जो ये अल्टरनेटर का वाई फेज तथा नहीं अल्टरनेटर आर फेज तथा बस बार का आर फेज, दोनों में कुछ फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बल्ब जो होता है वो मतलब कि डार्क जैसे नहीं होता है, मतलब कि हल्का डार्क होता है। जिसे कहते हैं डार्क, मतलब कि हल्का सा ब्राइट होता है। और देखिए यह हल्का डार्क होता है। और देखिए ये जो है
जो कि देखिए जैसे वाई फेज है अल्टरनेटर का, यह बी फेज से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों में मतलब कि फेज एंगल 120 अंश का डिफरेंस है, मतलब कि सेम फेज में नहीं है। तो ए बी जो बल्ब है वह हल्का जैसे ब्राइट होकर जलते हैं, और ये भी इसी प्रकार हल्का जलता है। अब देखिए प्राइम मूवर की सहायता से इस अल्टरनेटर के रोटेशन को सेट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पर। तो देखिए धीरे धीरे जब सेम फ्रीक्वेंसी पे करेंगे तो जो बीच वाला है सेम फेज में जुड़ा हुआ है, अतः इसके एकरास जो विभवांतर है वह शून्य हो जाता है, और ये जो बीच वाला बल्ब है धीरे धीरे डार्क होने लगता है, मतलब धीरे धीरे बूतने लगता है। और देखिए ये जो दो फेज हैं इनमें इनका फेज डिस्प्लेसमेंट 120 अंश होने के कारण ये धीरे धीरे ब्राइट होने लगते हैं, और जब फुल्ली या डार्क हो जाता है और ये दोनों ब्राइट हो जाते हैं तो इसका मतलब कि ये इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है या सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं। Which earth electrodes? Which earth electrodes are recommended for industrial loads above 30 HP copper plate? The minimum size of a three-phase four-pole 50 Hz induction motors at a speed of 1425 rpm. The rotating field produced by the rotor rotates at a speed of 75 rpm with respect to the rotor। एन एस बराबर 120 एफ बटा के पी। देखिए जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो है कि रोटेशन हो जाएगा 1500 आरपीएम, और देखिए रोटर जो घूम रहा है वो 1425 आरपीएम से, तो 1500 माइनस 1425 यानी द रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई कलर कॉलर स्टेट्स एट ए स्पीड ऑफ 75 आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर। What is the formula of lower cutoff frequency of an RC coupled amplifier? What is the formula of lower cutoff frequency of an RC coupled amplifier? FL बराबर 1/2 पाई RC। Key points: the capacitive reactance is inversely proportional to the frequency. At low frequency the reactance is quite high. Only a small part of the input signal is allowed. It will act as a high-pass filter। देखिए भी सी वी नोड आर, देखिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, मैग्नीट्यूड एवीएम में, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। देखिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है? जब दो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को कास्केड कनेक्शन में जोड़कर आउटपुट प्राप्त किया जाता है तो उसे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। जैसे देखिए एक तो एम्पलीफायर 1 और दूसरा एम्पलीफायर 2, इसको बीच में इस डिवाइस से जोड़ा गया है, इसे कपलिंग डिवाइस बोलते हैं। यहाँ पे आउटपुट प्राप्त किया जाता है। देखिए कपलिंग डिवाइस 3 प्रकार का होता है, एक तो आरसी कपलिंग, दूसरा ट्रांसफार्मर कपलिंग और तीसरा डायरेक्ट कपलिंग। देखिए यहाँ पे 2 ठो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो देखिए किसी भी सर्किट में यदि एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं तो उसे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। देखिए आरसी कपलिंग है। देखिए पहले एम्पलीफायर का डिवाइडर बाई सर्किट ये है और दूसरे एम्पलीफायर का डिवाइडर बाई सर्किट ये है। इसमें देखिए ए है, ए है, ए है, ए है, और ए और ए। देखिए यह इनपुट कैपेसिटर है तथा यह देखिए कपलिंग कैपेसिटर है, और यह देखिए आउटपुट कैपेसिटर है। देखिए यह जो कपलिंग कैपेसिटर है यह एसी को पास कर देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है, और देखिए यहाँ पर यह एसी को पास करता है। और देखिए ये देखिए इसे
बाईपास कैपेसिटर बोला जाता है। इसको भी बाईपास कैपेसिटर बोला जाता है। यह बाईपास कैपेसिटर जो है, यह भी क्या है कि एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। ये देखिए ग्राउंडिंग किया गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इनपुट दिया जाता है, यहाँ पे आउटपुट प्राप्त किया जाता है। देखिए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से कम वोल्टेज गेन प्राप्त हो रहा था, यहाँ पे वोल्टेज गेन ज़्यादा प्राप्त होगा। अब देखिए फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व ऑफ आरसी कपलिंग। देखिए यह ए भी मतलब वोल्टेज गेन और फ्रिक्वेंसी के बीच में कर्व खींचा गया है। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज गेन और फ्रिक्वेंसी के बीच में कर्व खींचा जाता है। देखिए इसमें जो कर्व होता है इस तरह जाता है, फिर यहाँ से ऐसे स्ट्रेट होता है, फिर इस तरह हो जाता है। देखिए यह है लोअर फ्रिक्वेंसी कट ऑफ, यह देखिए अपर फ्रिक्वेंसी कट ऑफ एफ एल और एफ यू। देखिए देखिए यहाँ तक के रेंज को लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज बोला जाता है, तथा इधर यहाँ तक के एरिया को अपर फ्रिक्वेंसी रेंज बोला जाता है, तथा देखिए यहाँ तक का जो एरिया है उसे मिड फ्रिक्वेंसी रेंज बोला जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक के एरिया को बैंडविड्थ बोला जाता है। बैंडविड्थ बराबर यहाँ पे हो जाएगा एफ यू माइनस एफ एल, एफ यू माइनस एफ एल। यहाँ तक के से यहाँ तक के एरिया को बैंडविड्थ बोला जाता है, एफ यू माइनस एफ एल। देखिए शुरुआत में जब यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो वोल्टेज गेन जो है बढ़ रहा है, और देखिए 50 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज तक जो गेन है वह कांस्टेंट हो जा रहा है। देखिए जो आरसी कपलिंग एम्पलीफायर है, यहाँ से इधर तक तो वोल्टेज गेन कांस्टेंट है, बट ध्यान दीजिए जो फ्रिक्वेंसी है वह बढ़ रही है। अब देखिए इससे आगे जब फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज गेन कांस्टेंट हो जा रहा है। इसे इफेक्ट ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस बोला जाता है। देखिए आरसी कपलिंग एम्पलीफायर का यूज हम लोग रिकॉर्ड प्लेयर में करते हैं, टेप रिकॉर्डर में करते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में करते हैं, रेडियो रिसीवर में करते हैं, तथा टीवी रिसीवर में करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर कपलिंग किसे बोलते हैं, तो एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ने के लिए जब बीच में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है तो इसे ट्रांसफार्मर कपलिंग बोला जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है केवल एसी पर काम करता है, डीसी पर नहीं। देखिए यहाँ से इनपुट दिया जा रहा है, तो देखिए यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो इसको एम्पलीफाई कर रहा है, और फिर देखिए इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से देखिए फिर जो दूसरा एम्पलीफायर है इसको इनपुट दिया जा रहा है, और फिर देखिए यहाँ से एम्पलीफाई आउटपुट प्राप्त होता है। देखिए ये जो बीच वाला ट्रांसफार्मर है इसी को ट्रांसफार्मर कपलिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ R1 R2 डिवाइडर बाय सर्किट होता है, इसको ध्यान रखें। यह जो डिवाइडर बाय सर्किट है यह क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन में फिक्स करता है। यह बाईपास कैपेसिटर है जो एसी को जाने देता है तथा डीसी को ब्लॉक करता है। देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है यह इम्पीडेंस मैचिंग के लिए लगा हुआ है। देखिए जो ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है वह पावर को एम्पलीफाई करता है, मतलब इसका यूज पावर एम्पलीफिकेशन में किया जाता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर कपलिंग के मेरिट, यह देखिए एक्सेलेंट इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करवाता है। दूसरा यह इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है। तीसरा इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए इसका डीमेरिट क्या होता है कि इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो होता है वह अच्छा नहीं होता है, और दूसरा बात ट्रांसफार्मर लगे होने के कारण यह महंगे व भारी होते हैं। और देखिए इसके फ्रिक्वेंसी में डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है। डिस्टॉर्शन मतलब इस प्रकार होता है कि कोई भी एसी सिग्नल इस प्रकार होता है, लेकिन यदि डिस्टॉर्शन इसमें होता है तो देखिए इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है, फिर इस तरह हो जाता है। मतलब कि यही दूरी को जो है डिस्टॉर्शन बोलते हैं।
ट्रांसफार्मर कपलिंग का एप्लीकेशन देखिए पावर एम्पलीफिकेशन में, दूसरा इम्पीडेंस मैचिंग में। और देखिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो कि वोल्टेज गेन तथा फ्रीक्वेंसी के बीच में खींचा जाता है। तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी कर्व इस प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे एफ आर पर बोलो तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इसका जो वोल्टेज गेन होता है वह ज़्यादा होता है मैक्सिमम, वो भी कुछ समय के लिए होता है फिर डाउन हो जाता है। देखिए एनालिसिस गेन ए बी बराबर जे टू पाई एफ आर सी बटा के 1 + J 2 पाई एफ आर सी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेन मॉड ऑफ ए बी बराबर 2 पाई एफ आर सी बटा के करड़ी में 1 + 2 पाई एफ आर सी का होल स्क्वायर। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम गेन ए भी मैक्स बराबर 1 एट एफ बराबर इनफाइनाइट एट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी गेन विल बी 1 बटा के करणी में 2 टाइम्स द मैक्सिमम गेन। यानी कि देखिए 2 पाई एफ सी आर सी बटे के करड़ी में 1 प्लस कोष्टक में 2 पाई एफ सी आर सी का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा करड़ी में 2, यानी एफ सी बराबर हो जाएगा 1 बटा के 2 पाई आर सी। देखिए एफ सी बराबर 1 बटा के 2 पाई आर सी, 1 बटा के 2 पाई आर सी। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड ACSR स्टील स्ट्रैंड्स एल्युमिनियम स्ट्रैंड्स। ACSR conductor consists of a solid or stranded steel core surrounded by strands of aluminum. The outer strands are high purity aluminum, chosen for its good conductivity, low weight, low cost, resistance to corrosion, and decent mechanical stress resistance. The center strand is the steel for additional strength to help support the weight of the conductor. Steel is of higher strength than aluminum, which allows for increased mechanical tension to be applied to the conductor. These properties allow ACSR to sag significantly less than all aluminum conductors. As a thumb rule, what is the depth of the pole to be planted in the ground taken as used for erecting an overhead line? 1/6 of the pole length. Concept: setting depth of poles is 1/6 part of the length of pole. The depth for most heavy poles should be at least 2 feet. Another rule of thumb is that the hole's depth should be 1/6 of the length of the poles and below the frost line. Cement concrete footing shall be used for all type of towers. The depth of the foundation may vary from 1.5 to 3.5 meters. The footing resistance of all towers shall be measured in dry weather after their erection before the stringing of earth wire. In case the tower footing resistance exceeds 10 ohms. Bundled conductors are used in extra high voltage EHV transmission lines primarily to reduce corona losses. देखिए bundled conductors are those conductors which harm from two or more stranded conductor bundled together to get more current carrying capacity. Using bundle conductors instead of the single conductor in the transmission line increases the GMR of the conductors, so inductance reduces according to the following equation. L बराबर होता है μ0/2 पाई ln GMD बटे के GMR हेनरी पर मीटर। Hence, the inductance per phase of the conductor decreases. देखिए हेनरी पर मीटर पर फेज है,
यल बराबर म्यू जीरो अपॉन टू पाई एल एन जी एम डी बटा के जी एम आर। मतलब कि जब जी एम आर का मान बढ़ेगा इंडक्टेंस का मान घटेगा। सो कैपेसिटेंस hence the inductance per phase of the conductor decreases, so capacitance increases according to the following equation. Capacitor C increases 2 pi epsilon naught epsilon r बटे के ln gmd बटे gmr। C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर। C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर बटे के ln gmd बटे gmr farad per meter per phase। Hence by using bundle conductor GMR is increased, so inductance L decreases and capacitance C increases। By using bundle conductor GMR increased, देखिए GMR यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, so inductance L decreases। Advantage of bundle conductors: the bundling of conductors leads to a reduction in line inductance। The bundling of conductors leads to increase in capacitance। An important advantage of bundle conductor is their ability to reduce corona discharge। Reduction in the formation of corona discharge leads to less power loss and hence improved transmission efficiency of the line। Reduction in communication line interference। To start a single-phase induction motor, a capacitor is connected in series with auxiliary winding used to generate a phase difference between the torques, which are generated by fluxes equal in magnitude but opposite in direction। What is the main component of driving system? Part of energy meter electromagnet। Driving system of energy meter. In this system, there are two silicon steel laminated electromagnets. The upper magnet called shunt magnet. It carries a voltage coil consisting many turns of thin wire which connected to supply voltage, so it is behave like a potential coil. Voltage coil is connected to the supply voltage. The lower magnet called series magnet, it carries the two current coils consisting of few turns thick wire and behaves like a current coil. Current coil are connected in series with the circuit and load current passes through it. The driving system construction. In this system there are two silicon steel laminated electromagnet. Upper magnet shunt magnet behaves as potential coil. Lower magnet series magnet behave as current coil. Moving system. In this system, a thin aluminum disc placed in the gap between the two electromagnets and mounted on a vertical shaft that is free to rotate. Registering system. It registers the number of rotation of the disc, which is proportional to the energy consumed directly in kilowatt hours. Braking system. This system has a permanent magnet called brake magnet. It is located near the disk so that eddy current are induced and braking torque to the disk. Calculate the reading of voltmeter when 110 volt 50 Hz is supplied across PNC voltmeter having internal resistance 10 किलो ओम एंड फुल स्केल रेंज ऑफ 0 से 220 वोल्ट। देखिए जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है केवल डीसी को मापता है, एसी को नहीं होता। 0 वोल्ट रीडिंग आएगा। ये देखिए सवाल को घुमाया है। तो कैलकुलेट एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग 450 प्राइमरी टर्न्स एंड ए मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.06 वेबर।
अब देखिए कॉन्सेप्ट गिवन डाटा सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, प्राइमरी टर्न 450, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 0.06 वेबर, आर एम एस इंड्यूस्ड ई एम एफ बराबर होता है 4.44 गुणे फ्रिक्वेंसी गुणे के नंबर ऑफ टर्न गुणे के फ्लक्स। 4.44 आवृत्ति टर्न फ्लक्स, 4.44 फ्रिक्वेंसी टर्न फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी टर्न फ्लक्स। देखिए एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एन नंबर ऑफ टर्न, फाई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। देखिए आर एम एस इंड्यूस्ड ई एम एफ बराबर, देखिए गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6594 वोल्ट। अब देखिए जब आर एम एस मान निकल गया है तो एवरेज मान निकाल लेंगे। सबसे पहले पीक मान निकालेंगे, फिर पीक मान निकालने के बाद आर एम एस वैल्यू निकाल लेंगे, एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे 2 Vm/पाई से। सवाल दिया ए पावर प्लांट हैज मैक्सिमम डिमांड 15 मेगावाट, द एनुअल लोड फैक्टर इज 50% एंड एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 40%, द ऑपरेटिंग रिजर्व कैपेसिटी इज। देखिए सबसे पहला इसमें फार्मूला लगेगा, लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटा के मैक्सिमम डिमांड। तो देखिए यहाँ पे एवरेज लोड को x माना गया है और मैक्सिमम डिमांड 15 मेगावाट दिया हुआ है। तो देखिए एवरेज लोड का माना जाएगा 7.5 मेगावाट। अब देखिए दूसरा फार्मूला होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटा के प्लांट कैपेसिटी, एवरेज लोड बटा के प्लांट कैपेसिटी। देखिए एवरेज लोड यहाँ पर 7.5 है और प्लांट कैपेसिटी को y मान लिया गया है, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 18.75 मेगावाट, यानी प्लांट कैपेसिटी 18.75 मेगावाट है। अब देखिए रिजर्व कैपेसिटी बराबर होता है, ऑपरेटिंग रिजर्व कैपेसिटी बराबर होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, यानी 18.75 में से 15 घटा देंगे तो 3.75 आ जाएगा। What is the main purpose of using the light coating layer on the electrode to increase arc stability? देखिए explanation, bare electrode, these are the bare electrode which is not coated with any fluxing material. Bare electrodes are in the form of wire. During welding operation an arc is struck between the workpiece and the electrode wire. Then the electrode is melted down into the weld. When the molten metal electrode and workpiece are exposed to the atmosphere of the oxygen and nitrogen, they form their oxides and nitrides and cause the formation of some non-metallic constituent which reduces the strength and ductility of the deposited weld. The bare electrodes are usually employed for automatic and semi-automatic welding. With the bare electrode, the welding can be done satisfactorily with DC supply only if the electrode be connected to the negative terminal of the supply. Coated electrode, depending upon the thickness of flux coating, the coated electrode may be classified into lightly coated electrode. These electrodes are coated with a thin layer up to less than 1 mm. This coating usually consists of lime mixed with soluble glass which serve as a binder. The main purpose of using the light coating layer on the electrode is to increase the arc stability, so they are called as stabilizing electrode. Heavily coated electrode. These electrodes have a coating layer with heavy thickness. The materials commonly used for coating the electrodes are
titanium oxide, ferro manganese, silica floor, as asbestos, clay, calcium carbonate, etc. Advantage of coated electrode: arc is stabilized due to flux compounds of sodium and potassium. The weld metal can be protected from the oxidizing action of the oxygen and the nitrifying action of the nitrogen due to the gas shielding envelope. The impurities present on the surface being welded are fluxed away. The electrode coating increases deposition efficiency and weld metal deposition rate through iron powder and ferroalloy addition. The welding operation becomes faster due to the increased welding rate. The coated electrode helps to deoxidize and refine the weld metal. Solution: the main purpose of using the light coating layer on the electrode is to increase arc stability. देखिए concept. According to Biot-Savart's law, the magnetic field at a point due to the incremental element of length dl carrying a current is given by dB बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, where V is magnetic field in Tesla, I is the current in the wire in ampere, small r is the radius of the wire in meter. From the above expression, it is clear that the magnetic field at a point due to the incremental element of length dl carrying a current is directly proportional to the current carried by element. Magnetic field intensity for various current distribution. For line current H बराबर समाकलन आई डी एल आई आर बटे फोर पाई आर स्क्वायर. सरफेस करंट एच बराबर समाकलन एस समाकलन के इंटू डी एस इंटू आई आर बटे के फोर पाई आर स्क्वायर. देखिए के जो है सरफेस करंट डेंसिटी वैल्यूम करंट, एच बराबर समाकलन जे डी वी आई आर बटे फोर पाई आर स्क्वायर. वेक्टर जे वैल्यूम करंट डेंसिटी इन ऑल लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम एच प्रोपोर्शनल वन बाई आर स्क्वायर. देखिए बायो सेवर्ट लॉ, मान लीजिए कि करंट कैरिंग वायर है, तो देखिए यह बायो सेवर्ट लॉ मतलब कि इस करंट के छोटे से लंबाई जो कि डीएल दिया हुआ है, इससे आर दूरी पर जो कि छोटा मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो कि उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में बताता है. जो डीबी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई डी एल साइन थीटा बटे के आर स्क्वायर के, यानी कि हो जाएगा डीबी बराबर म्यू जीरो फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बटे के आर स्क्वायर के. देखिए यहाँ पे जो के है, देखिए ये जो बीच में जो मीडियम है इसको इस पर डिपेंड करता है. यदि निर्वात होता है तो वहाँ पर म्यू जीरो फोर पाई लेते हैं के का मान. देखिए वेक्टर फॉर्म में डीबी बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल गुणे के वेक्टर आर बटा के आर क्यूब. देखिए यहाँ पे छोटे से तार के लिए है, न कि पूरे तार की लंबाई के लिए. What recommended rating should be used for calculating current flow for a 5 एम्पियर 3 पिन सॉकेट आउटलेट. देखिए इस तरह कर देंगे कि देखिए वोल्टेज लेवल होता है 220 वोल्ट, तो इसमें से 5 करंट जाने यानी कि पावर जो जाएगा 220 गुणे के 5 लगभग 1000 के नियर अबाउट आ रहा है, इसीलिए 1000 वाट यहाँ मार्क किया गया है. इन ए कार्ड एक्सटेंशन सेट the rated current of the portable socket outlet shall be not higher and the rated voltage shall be not less than that of the plug. In a residential building, the standard AC supply is 230 volt. The load of 5 ampere light socket is given by लोड बराबर वोल्टेज गुणे करंट रेटिंग यानी 230 गुणे के 5 यानी 1150 वाट.
देयर फॉर द पावर रेटिंग विल बी 1000 वाट। देखिए एलसीआर परिपथ में फ्लो होने वाले जो करंट है एक ठो स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होती है। उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और यह देखिए जो इस एलसीआर परिपथ से फ्लो होने वाले करंट का ग्राफ है। और देखिए इस करंट को रेजोनेंस करंट बोलते हैं। देखिए यह इस ग्राफ में यह फिक्स हो जा रहा है कि जैसे जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे जो करंट है वो बढ़ रही है और एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी के बाद डाउन हो रही है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखें कि इम्पीडेंस के बात तो अलग ही है, लेकिन यदि रजिस्टेंस जो होगा रजिस्टेंस पर भी जो आरएलसी करंट है वो डिपेंड करती है। मतलब कि यदि ज़्यादा रजिस्टेंस होगा तो देखिए एलसीआर परिपथ से फ्लो होने वाली करंट जो होगी इस तरह ज़्यादा फ्लैट होगी, जबकि यदि रजिस्टेंस का मान कम होगा तो देखिए इस तरह शार्प होगा। देखिए इसको बैंडविड्थ बोला जा रहा है, बोलते हैं। मतलब कि यदि रजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो बैंडविड्थ ज़्यादा बड़ा होगा, तथा यदि जो है कि रजिस्टेंस का मान कम होगा तो उस समय बैंडविड्थ कम होगा। देखिए जब करंट शार्प प्राप्त होती है तो इस समय इस सिस्टम का यूज हम लोग बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमें ट्यूनिंग बहुत अच्छा मिलता है। देखिए इसका यूज जनरली टीवी रिसीवर में तथा रेडियो रिसीवर सेट में किया जाता है। मतलब कि जो टीवी अथवा रेडियो रिसीवर सेट होते हैं वे इस पर्टिकुलर जो शार्प करंट है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर उसको वे अचीव करता है तथा उस समय सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो करती है, जिससे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दें बैंडविड्थ से हम यह पता लगाते हैं कि जो रेजोनेंस पे जो फ्लो होने वाली करंट है का जो ग्राफ है वो कितना शार्प है। यदि ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा तो वह ज़्यादा शार्प होगा तथा हमें ज़्यादा अचीव होगा करंट। अब देखिए मैथमेटिकली इसका क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन। क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर अथवा कैपेसिटर टू द इम्प्रेस्ड वोल्टेज Q बराबर VL अथवा VC बटा के VR। Q बराबर ओमेगा R बटा के 2 डेल्टा ओमेगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। देखिए यहाँ पे इम्प्रेस्ड वोल्टेज क्या होता है। जब देखिए रेजोनेंस की अवस्था में एक्सएल जो होता है एक्ससी के बराबर हो जाता है, यानी VL जो है VC के बराबर हो जाता है, तो जो अप्लाइड वोल्टेज होता है पूरा रेजिस्टेंस के क्रॉस ही दिखता है। इसी को हम लोग इम्प्रेस्ड वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वालिटी फैक्टर बराबर आ जाएगा VL बटा के VR, यानी IXL बटे के IR। तो देखिए आई से आई कट जाएगा, यानी ओमेगा L बटा के R। देखिए यहाँ पे ओमेगा को ओमेगा R इसलिए लिया गया है क्योंकि यह रेजोनेंस पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। देखिए यदि यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है कि कैपेसिटर का वोल्टेज यानी VC लेते तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर हो जाता VC बटा के VR। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1 बटा के ओमेगा R इंटू CR। यह भी क्वालिटी फैक्टर का ही फार्मूला है, यानी 2 क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो रेजोनेंस के शार्पनेस को दिखाता है। मतलब जितना शार्प रेजोनेंस होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। यह सवाल दिया है ए सीरीज RLC सर्किट हैज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 kHz एंड क्वालिटी फैक्टर Q बराबर 100। ईच ऑफ RLC डबल्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। द न्यू क्वालिटी फैक्टर Q ऑफ द सर्किट इज। देखिए रेजोनेंस की अवस्था में हम जानते हैं कि एक्सएल का मान XC के बराबर होता है, तो यहाँ से ओमेगा L बराबर हो जाएगा 1 बटा के ओमेगा C, यानी कि इसको हल करेंगे तो देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटा के LC, यानी ओमेगा का मान हो जाएगा 1 बटा के करड़ी में LC।
अब देखिए इसको 1/करणी में एलसी को क्वालिटी फैक्टर वाले फार्मूला यानी 1/ओमेगा L/R में जब रख देंगे ओमेगा की जगह पे, तो आ जाएगा क्वालिटी फैक्टर बराबर 1/R करणी में L/C। तो देखिए L भी दुगुना हो रहा है, C भी दुगुना रह रहा है, तो A तो निगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन देखिए जो R है ये अभी डबल हो रहा है। तो जब देखिए R डबल हो रहा है तो जो क्वालिटी फैक्टर जो है R के व्युत्क्रमानुपाती है, अतः क्वालिटी फैक्टर भी आधा हो जाएगा, मतलब कि 100 का 50 हो जाएगा। द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू voltage and current. The temperature coefficient of resistance of a wire 0.0008 Celsius if the resistance of the wire is 20 ohms at 0 Celsius. What is the resistance at 500 Celsius? Concept: the resistance of the conductor changes when the temperature of that conductor changes. New resistance is given by RT बराबर R0 कोष्टक में 1 + अल्फा डेल्टा T, where RT the resistance of the conductor after temperature changes, R0 the resistance of the conductor before temperature changes, अल्फा temperature coefficient, डेल्टा T final temperature minus initial temperature। R0 का मान 20 ओम, अल्फा का मान 0.0008 प्रति सेल्सियस, डेल्टा टी का मान 500 सेल्सियस। तब देखिए RT का मान 28 ओम आ जाएगा। सिलिकॉन कंटेंट इन आयरन लेमिनेशन इज केप्ट विदिन 5% एज इट मेक्स द मटेरियल ब्रिटल, मतलब कि सिलिकॉन को यदि आयरन के लेमिनेशन में 5% डाल देंगे तो वह भंगुर बना देता है इसको। स्टील इज कंसिडर्ड टू बी हैविंग गुड परमिएबिलिटी एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बट इट हैज़ हाई conductivity. To reduce conductivity by not destroying magnetic properties, alloying with silicon by 3.5% to 4% more silicon percentage will destroy the mechanical properties. This will makes the material brittle. सवाल दिया है, the sag of conductors of a transmission line is 2.5 meter when the span is 250 meter. If the height of supporting towers is increased by 25%, the sag will be remain unchanged. The concept: the distance between the highest point of electric poles or towers and the lowest point of conductor connected between two poles or towers. Span length: it is the shortest distance between two towers or poles. S बराबर ω/L² 8T, where S is the sag of the conductor, omega is the weight of the conductor, small l is the span length of the conductor, capital T is the working tension on the conductor. तो देखिए जो सैग होता है वह स्पैन पर निर्भर करता है, कंडक्टर के भार पर निर्भर करता है, तनाव पर निर्भर करता है, बट देखिए टावर की लेंथ पर निर्भर नहीं करता है, तो अनचेंज्ड रहेगा। ये हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ लक्स वुड मेक ए सिंगल यूनिट ऑफ फुट कैंडल। देखिए द फुट कैंडल इज डिफाइंड एज 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर फुट। इट इज़ द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। Illumination is defined as the luminous flux received by the surface per unit area. देखिए illumination is defined as the luminous flux received by the surface area, मतलब कि कितना luminous flux एक ठो यूनिट एरिया जो है रिसीव कर रहा है उसे illumination कहते हैं। देखिए चूँकि हम जानते हैं कि एक ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग 1 लक्स बोलते हैं, तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो है कि जो चूँकि हम जानते हैं 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर,
तो देखिए यहाँ से बात करें तो हो जाएगा 1 मीटर बराबर 1/30-38 हो जाएगा। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/30-38, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसको उठाकर यहीं पे रख देंगे और फिर जो आंकिक मान है उसको इधर भेज देंगे तो आंसर आ जाएगा 10.76। इन डीसी शंट मोटर फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ थिन वायर। देखिए द फील्ड वाइंडिंग इन ए डीसी शंट मोटर कंसिस्ट ऑफ many turns of thin wire. This is because the field current needs to be constant and thin wire has a higher resistance than thick wire. This higher resistance help to limit the current through the field winding even when the supply voltage is high. The other options are incorrect. Many turns of thick wire. This would be result in a very high field current, which would be insufficient and could damage the motor. देखिए few turns of thin wire. This would be result in a very low field current, which would not produce enough magnetic field to drive the motor. Few turns of thick wire. This would result in a very high field current, and the low resistance of the thick wire would mean that the current would be difficult to control. DC shunt motors are commonly used in application where constant speed is required, such as fans, pumps and machine tools. देखिए SI unit of flux Weber, unit of reluctance ampere turn per Weber, unit of permeance Weber per ampere turn. Which supply line has highest current rating from pole line? The fuse rating is the current carrying to a particular connected load. Order of the wiring done for the consumer end connection is from secondary distribution transformers. Power lines are sent to each pole present in the street. From the pole, each service line is connected to the energy meter of each house. From the main meter, it is distributed to the main circuits of the building. From the main circuit, it is then divided into sub-circuit connections. Magnitude of current carried by the wires in the above process are given as. देखिए आई पोल का ज़्यादा होगा, फिर उससे कम आई मीटर का, फिर उससे कम आई मेन सर्किट का, फिर उससे कम सब सर्किट का. Hence pole carrying more different servicemen of the house. The pole fuse has the highest fuse rating. इसको याद रखने का ट्रिक है पो में मासू, पो में मासू, पो में मासू. पो से पोल, में से मीटर, मा से मेन सर्किट और सू से सब सर्किट. पोमी में सू, पोमी में सू, पोमी में सू.